یہ ہے کہ یہاں ہر مذہب والا رہتا ہے، ہر مذہب والے کو جینے کا حق ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سنانا چاہتا ہوں جس میں اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ۔ اس آیت میں اللہ نے مسجدوں کا بھی ذکر کیا، گرجا کا بھی ذکر کیا، دیگر مذہبوں والوں کی عبادت گاہوں کا بھی ذکر کیا، اور ہر مذہب کی عبادت گاہوں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ ان عبادت گاہوں کو ثابت رکھنے کے لیے، بناوا رکھنے کے لیے اللہ نے اس کو لوگوں کو بچانے کے لیے اللہ نے ایک کام فرمایا ہے اور لوگوں کو ٹھہرایا ہے فرمایا۔ اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ لوگوں دیکھو تم دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا نہ بولنا، ان کی طرف کوئی غلط نظر اٹھا کے نہ دیکھنا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ہمارے مذہب میں بھی یہ تعلیم ہے اور دوسرے مذاہب میں بھی یہ تعلیم ملتی ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کرے۔ تو یہ انڈیا کی اور ہندوستان کی خوبصورتی ہے۔ یہاں پر جہاں ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو ہماری یہ اہم ترین ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم آنے والے ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نئی نسلوں کو یہ بات سکھائے کہ ہمارے ساتھ کل تک ہماری جو دیوار بازو ہمارے ہندو بھائی ہے یا کوئی سکھ بھائی ہے یا کوئی عیسائی بھائی ہے، یہ ہندوستان میں رہے ہیں۔ ہندوستان کو آزاد کرنے میں ہر ایک کا برابر حصہ ہے، اور اس میں ترقی اسی وقت ممکن ہے جب ہم آپس میں نفرتوں کی دیواروں کو مٹائے۔ یہ ہماری عین ذمہ داری ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ ذہنی فکری اعتبار سے بچوں کی، نوجوانوں کی فکر بنائے کہ یہ جو آج نفرتوں کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ دیکھیے آج کا اسٹیج کتنا بہترین اسٹیج ہے، یہاں پر ہر مذہب والے، ہر قسم کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے اور سب مل کر برکاتہ۔ نمستے، آداب۔ تمام یہاں پہ جو خواتین موجود ہے اور جو مرد حضرات یہاں اولٹانڈو کے اتنا وقت نکال کر یہاں پر موجود ہے، اور جتنے اسٹیج پہ جو بزرگ حضرات یہاں پہ موجود ہے، تہہ دل سے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ قوم کی ایک فکر لے کے ہر ذات کے لوگ یہاں پر موجود ہے، کیونکہ ہر ایک کو یہ فکر ہے ہمارے بچوں کا فیوچر کیسا ہوں۔ ہم لوگوں کی بھی یہی فکر ہے ہمارے بچوں کا فیوچر کیسا ہوں، کیونکہ دن پہ دن حالات بدلتے جا رہے، بھلے کوئی بھی قوم کے ہوں گے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہم سب یہاں پر جو اسٹیج پہ بیٹھے، کوئی پارٹی سے مطلب نہیں ہے، کوئی دور مذہب سے مطلب نہیں ہے، ہم سب کا مقصد ایک ہے، انسانیت۔ بس انسانیت کے اندر تبدیلی کیسا آنا چاہیے۔ اب یہ جو کام آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہا، یہ کام جو ہے یہ ایسے بزرگ شخصیتوں کی صحبت میں رات دن رہنے سے ان لوگوں کی باتوں سنتے 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 ایک بات سمجھ میں آئی۔ اللہ کے فضل سے آپ لوگوں اس کے اوپر ہم عمل کر رہے، آپ لوگ اس کا رزلٹ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں جو ہے میرے گزرے کل پہ میں جو ہے اس پہ نظر ڈال کے آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے آج تک میں کسی کے سامنے ذکر نہیں کرا یہ کام کرنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ اولڈ ٹانڈور میرے والد کو ہر کوئی جانتے، کیونکہ یہیں کی پیدائش ہے میرے دادا دادی، میرا خاندان پورا یہیں کا، اللہ کی وجہ سے یہیں قبرستان میں جو ہے وہ لوگ مدفون ہیں، یہیں پہ جو ہے میری بھی خود یہیں کی پیدائش ہے، تو ہمارا بہت گہرا تعلق ہے اولڈ ٹانڈور سے۔ تو اس لیے جو ہے تھوڑا میں کھل کے تھوڑی بات میں اپنی میری زندگی کا، جب میرے والد جو ہے ایجوکیشن کے واسطے اسکول کے اندر میرے کو ایڈمیشن دلائے، پڑھنے کا تو شوق تھا، کیونکہ کاروبار جو ہے تنگ چلتے تھے تو والد صاحب کے پاس جو ہے فیس کا نکلنا بہت مشکل ہوتا تھا، تو والد صاحب کو بہت خواہش تھی میرے کو پڑھانے کی، میرے کو پڑھنے کی بھی خواہش تھی، تو فیس جو ہے اسکول کی جو پے نہیں کر کے 3-4 مہینے جو ہے ڈیو رہنے کی وجہ سے اسکول سے میرے کو بار بار واپس بھیجا دیتے، تو وہ تکلیف دیکھ کے میں سوچا میرے والد کو تکلیف دے کے پڑھنا کیا ہے، لہٰذا میں کچھ کاروبار کروں۔ میری جو ہے 12-13 سال کی عمر میں ہی میرے کو شوق پیدا ہوا، مطلب میری خود کی ذات کی کمانے کے واسطے شوق پیدا نہیں ہوا، میں کچھ کما کے میری ماں باپ کی خدمت کروں گا۔ یہ اللہ گواہ ہے، یہ الفاظ روز محشر میں بھی تم لوگ دیکھیں گے، آج تک میں کسی کے سامنے شیئر نہیں کرا، میں یہاں پہ اس بات کا جو ہے اظہار کرنے کا مقصد کیونکہ میرے والد یہاں پہ موجود ہے، کیونکہ یہیں پہ قبرستان ہے، یہیں پہ دفن ہے، تو یہاں پہ میرے والد کے خاندان والے پورے یہاں پر موجود ہے، اس بات کا وہ لوگ بھی گواہ ہے، کیونکہ میرے والد جو ہے اس ٹائم پہ صرف ان کی خدمت کی نیت سے میں پڑھنا چھوڑ کے میں کاروبار کی طرف میں جو ہے بڑھا۔ کچھ دن کے بعد میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد پھر میرے فیاض بھی میرے ایک دوست ہے، شروع سے نو کاروبار میں عمر سے 8-10 سال بڑے ہیں میرے، تو میں ان کے ساتھ کاروبار کے تعلق سے ان کے ساتھ جڑ گیا ہوں، بولا فیاض بھائی میرے کچھ کاروبار کرنا ہے، پیسے کمانا ہے،
बहरहाल उनके साथ में कारोबार करते 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 इतनी कई जगह फेल हो गए हम लोग। अब मेरा मकसद क्या था, सिर्फ पैसे कमाना, उसके अंदर दीन अच्छा हलाल हराम मेरे को तहजीब तमीज़ कुछ नहीं थी, सिर्फ मेरे दिमाग में ये था मेरे को माल कैसा मिलता। मगर कभी भी मेरे को जो है कामयाबी नहीं मिली, हमेशा नाकामी का शिकार हुआ मैं। उसके बाद वो उम्र के अंदर मैं जब 18-19 साल की उम्र को पहुंचा तो वो टाइम पे मेरे को उस टाइम पे जो है 10 से 20 लाख का खर्चा हुआ मेरा। खर्चा होने के बाद फिर जो है मैं आंध्र से हैदराबाद रुजू हुआ, फिर वहाँ पे तो कुछ लोग मिले, फिर उनके साथ फिर कारोबार का जो है वाला मुझे एडवाइस दिए, फिर वापस फिर हैदराबाद तांडवा आया, फिर कारोबार शुरू करा, फिर थोड़े दिन के बाद फिर शादी हुई, फिर रात दिन जो है मादिन के अंदर में जो कारोबार करा, कुछ कमाया कुछ नुकसान हुआ, बॉम्बे ट्रेडिंग करा। बहरहाल 14, 12, 13 साल की उम्र से कंटिन्यू स्ट्रगल करते गया, माल के पीछे पड़ते गया मैं। फिर एक 2002 या 2003 के बीच में फिर मादन के अंदर उस टाइम पे 2 करोड़ 75 लाख का खर्चा हुआ। तो छोड़ दे के जब मैं हैदराबाद चले गया, जाके जो अल्लाह वालों से रुजू हुआ, रुजू के बोला भाई मेरे हालात दिन पे दिन खराब है, आज कारोबार खत्म हो गया, मेरे को खर्चे का बोझ मेरे सर पे है, मेरे को अदा करने के लिए कोई मेरे पास असबाब नहीं है, मेरी मदद करने के लिए भी कोई दोस्त आगे नहीं आ रहा, मेरे खानदान के अंदर भी लोग जो है मेरे को बुरा भला बोल रहे, तो मैं क्या करूं? क्योंकि अल्लाह वाले मिसाल के तौर पे मेरे हिंदू बहनें भी यहाँ बैठी हुई है, हिंदू भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह वाले का मतलब गुरु, जैसा जो है गुरु बोलते हैं ना, तो उनके पास में जाके जो है उनसे मिला, मिलके जो है मेरी जिंदगी के हालात में उनके सामने रखा। तो उस वक्त एक बात बताए भाई, जब तुम्हारे हालात तंग हो जाएंगे तुम अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर को मुंतकिल हो जाओ, और जो अच्छी जो नीयत लेके तुम निकलेंगे ऊपर वाला तुम्हारी वो मदद करेगा। ये जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के मदीने से तशरीफ लेके गए, इसलिए क्योंकि मक्का में उनके खानदान वाले उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे, उनके अपने उन पर जुल्म कर रहे थे, उनके दोस्ता उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे। तो उस वो हालत में अल्लाह का हुक्म आए मेरे महबूब तुम मक्का छोड़ो, मदीना तशरीफ लेके जाओ। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन से आसमानों पे बुलाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत मक्का से जो है अपने क्या बोलते हैं बैतुल मुक़द्दस को लेके चले गए। तो जब एक ही रात के अंदर इतना लंबा सफर हुआ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो हिजरत के वास्ते वक्त निकाल के एक साथी को साथ लेके ऊंट के ऊपर सफर करके इतना लंबा स्ट्रगल करके जो है मदीना शरीफ जाने की क्या जरूरत पड़ी। तो बात ये समझ में आता वो हिजरत जो है पूरी उम्मत को सबक है। कोई यहाँ पे पढ़े लिखे जो लोग हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़िए और खासकर हिजरत का वाक़या पढ़िए, जो हिजरत के वाक़े को समझ जाएंगे इंशाअल्लाह तो जिंदगी कैसा गुजारना समझ में आता। ये बात समझना है, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली एक मुसलमानों के वास्ते नबी नहीं है, हर कौम के वास्ते है, पूरी इंसानियत के वास्ते रहमतुल आलमीन बना के अल्लाह ताला दुनिया में भेजा है। हर एक हर इंसान के वास्ते हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमूना है, एक आइडियल है। तो जिंदगी किस तरीके से गुजारना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को सिखाए। जब मैं अल्लाह वालों से जब रुजू हुआ तो ये बताए हुजूर जो है ये तरीका बताए उम्मत के वास्ते, क्योंकि जब उम्मत तकलीफ में आ जाएंगी, जो भी हालत में तकलीफ में आ जाएंगे वो जगह पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को सबक बताए। तो मेरे जब जो हालत थे तो हिजरत करने का हुक्म हुआ, मैं तांडू छोड़ के जब हैदराबाद शिफ्ट हो गया। हिजरत का मतलब यहाँ से ट्रांसफर होना, तो इधर से मैं जो है हैदराबाद ट्रांसफर होगा ये नीयत से। मेरे बच्चे जब छोटे छोटे थे 3, तो भाई उनके उम्र किसी की 3 साल, किसी की 2 साल, किसी की 5 साल। तो हालत से ऐसा दिखा मेरे घर के अंदर जो है आजू बाजू वाले आना बैठना, फिर मेरे हालत के बारे में, कर्जे के बारे में, क्रिकेट की लड़ाई झगड़ों के बारे में, चुप घर के अंदर डिस्कशन चलने में मेरे बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ता मेरे जहन में आ गया। मैं तो घर में नहीं रहता, बच्चे खेलते रहते, हम क्या समझते बच्चे खेल में हैं, बच्चों के काना पूरे जो है बड़ों की बातों की तरफ रहते। वो जो हम बातचीत करते घर के अंदर वो बातों का असर बच्चों के ऊपर पड़ता। तो इस तरीके से जो है मेरे पहली बार जहन में आया मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते मेरे को तांडू छोड़ना है। दूसरा जो है कारोबार के एतबार से कोई मेरे को यहाँ सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो मेरे को ये ख्याल आया भाई अब मेरे को कारोबार इंशाल्लाह जो हैदराबाद में करना है। तीसरा, अब यहाँ पे देखिए आप मेरे अपने को छोड़ दिए, कारोबार के हालत के हिसाब से खर्चे के एतबार से जो माहौल था वहाँ बिगड़ गया। उसकी ये सब जहन में रखते हुए मैं जब हैदराबाद शिफ्ट हुआ, जो अल्लाह वाले मेरे को एडवाइस दिए थे, मैं वहाँ पे गया तो अल्लाह गवाह है, कसम खुदा की बोल रहा हूँ, रात का वक्त है, एक अल्फाज भी झूठ नहीं बोल रहा। मेरी सोच से ज़्यादा अल्लाह ताला मेरे को कारोबार अता करे। मेरी सोच है, जबकि मेरे पास अदा करने के वास्ते 1 रुपया नहीं था। 2 करोड़ 75 लाख रुपए 2008 या 9 की बात बता रहा हूँ। उस वक्त के टाइम पे 2 करोड़ 75 लाख का मेरे को कर्जा था, अदा करने के लिए 1 रुपया मेरे पास नहीं था, मदद के लिए कोई साथी नहीं था, खानदान में कोई पूछने वाला नहीं था। तो बड़ा अल्लाह का फजल है, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं है।
बहरहाल इस बात में जब वहाँ शिफ्ट हुआ, जब होने के बाद अल्लाह ताला जब हालत बदल दिए, जैसा यहाँ दोस्तान छूटे तो बेहतरीन दोस्तान अल्लाह वहाँ अता करे, ख़ानदान छूटा तो ऐसा ख़ानदान मिला मैं सोच भी नहीं सकता, तिजारत छूटी तो ऐसी तिजारत मिली मेरे गुमान में भी नहीं था, मेरी ज़िंदगी में मैं सोच नहीं सकता था 2 करोड़ की गाड़ी में फिर सकता हूँ, जबकि मेरे को फिरने के वास्ते बाइक भी जब सलामत नहीं थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इस तरीके से मेरे को नवाजा। जब नवाजने के बाद ये बात ये मेरे को समझ में आई, जब अल्लाह इतने रहीम और करीम है, उसके नबी की सुन्नत पे हम अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी का नक्शा बदल जा रहा। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात सुनेंगे तो फिर आखिरत का मसला भी बदल देगा इंशाअल्लाह, क्योंकि आज हम जिंदा हैं, कल खबर में जाने वाले हैं। हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कोई बच्चे की जान का भरोसा है ना, कोई जवानी का है ना, कोई बुढ़ापे का, हर कोई एक दिन ना एक दिन खबर के हवाले होने वाले हैं। तो असल तैयारी क्या है? खबर की करना है। तो उस बात के बाद मेरे को बात समझ में आई, जो हालत में रात दिन नोट कमाने के वास्ते जो 10 साल के 12 साल जो जिंदगी में लगाया, तो वो हराम और हलाल की तमीज़ नहीं थी मेरे पास। खुदा ना खास्ता वो टाइम पे मैं माल कमा लेता, मैं जालिमों में शुमार हो जाता, क्योंकि मेरे को हमदर्दी का मतलब ही नहीं मालूम था, तकलीफ का मेरे को माने समझ में नहीं आते थे। जब मेरे को तकलीफों से मैं गुजरा, जब उसके बाद अल्लाह माल अता करा, तो बात ये समझ में तकलीफ क्या होती। जब ये मेरे जहन में आ गई बात, क्योंकि सुबह में पहला अमल क्या है? हुकूकुल इबाद है। जो मजबूर है उसकी मदद करना, अल्लाह से राजी होता। जो पढ़ना चाह रहा उसको पढ़ाना, अल्लाह से राजी होता। किसी को कर्ज देना, इससे अल्लाह राजी होता। उसके बाद के जो 4 इबादतें हैं, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है। पहली जो इबादत है कलमा है, कलमे का मतलब भी है तुम लोगों की खिदमत करो। जब हम इसके अंदर दुरुस्त हो जाएंगे तो हमारी नमाज भी कबूल, हमारा रोज़ा भी कबूल, हमारा हज भी कबूल, हमारा ज़कात भी कबूल। हम कलमे के अंदर हुकूकुल इबाद नहीं अदा करेंगे, हम दोस्त के साथ होकर दोस्त के पीठ में छुरा भुकरे। आप गौर करके देखिए, आज हम यहाँ पर इतने मौजूद हैं, आजू बाजू हम बैठते, मगर दिल में पूरा प्लान रहता सामने वाले को किस तरीके से नुकसान पहुंचाना। तो नाम की हमारी दोस्ती है, नाम की हमारी रिश्तेदारी है। जब अल्लाह के पास हम सूरत बताएंगे, जब अल्लाह ये पूछेगा, ऐ मेरे बंदे मैं तेरे को माल दिया था, ऐ मेरे बंदे तेरे को मैं लीडरशिप दिया था, ऐ मेरे बंदे तेरे को जो है मैं अच्छे रसूख दिया था, इससे तू क्या करा? जब वो बंदा क्या बोलेगा? दुनिया में ये काम करा, मैं अल्लाह तेरा, तू जो माल दिया था मैं तेरे बंदों पे खर्च करा, तू इल्म दिया था तेरे बंदों पे पहुंचा दिया, जो रसूख दिया मैं उनको खिदमत करा, तो उसकी बख्शिश होगी। अब जब यहाँ दुनिया के अंदर हम अमल नहीं करेंगे तो समझो उसके पलट के क्या होने वाला है। तो इसका मतलब यही है, अल्लाह ताला जो भी हमारे को जिस तरीके से हमारे को अल्लाह अता करा, तो हमारा काम है हम लोगों की खिदमत करना। तो इस तरीके से एक बात जहन में आ गई, एक दिन तो, क्योंकि जो हम रात दिन मेहनत करें वो तो उसके जरिए जीरो हासिल हुआ। बाद में जो अल्लाह वालों की बात सुने, नबी की सुन्नत पे अमल करे, अल्लाह जिंदगी का जो है काया पलट दिए। तो बात ये समझ में आ गई कि हमारे को एक दिन दुनिया से जाना है। हमारे दादा दादी चले गए, नाना नानी चले गए, वालदा वालिद भी चले गए। एक दिन हम लोगों को भी जो है खबर के हवाले होना है। ये जो माल कमा रहे हैं हम रात दिन, कितने भी कमाओ, 100 कमाओ, 200 कमाओ, 1000 करो, 10,000 करो भी कमाएंगे, एक दिन ना दिन हमारे को मरना है। वो माल फिर लोगों के हवाले हो जाएगा, फिर वो माल हमारी खबर के आजाद भी बन सकता। लिहाजा उशारत में हुआ, एक साहबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे पास ऊँट है, मैं इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो हुज़ूर बोले ठीक है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करके उसको जुबा कर दियो। तो उन्होंने या साहब मैं से मोहब्बत करता हूँ, फिर जुबा कैसा कर सकता हूँ मैं? तो तुम मोहब्बत करते हैं ना, तुम इसको जन्नत में लेके जाना है लेके जाना है, इसको जुबा करो, जन्नत के अंदर तुम्हारे को सवारी का काम करेगा। अब गौर करिए, जब ये बात मेरे को समझ में आ गई, मैं इतनी रात दिन मेहनत करके जो है माल कमा रहे, ये माल मैं छोड़ के जाऊंगा तो इसका जो फितना बनेगा। जब मेरे को इससे मोहब्बत है तो मेरा काम है इसको आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाने का तरीका क्या है? अल्लाह ताला बता दिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिए, तुम जो है अल्लाह वालों की खिदमत में पैसा खर्च करो, तुम गरीब गुरबा पे पैसा खर्च करो, तुम बच्चे जो एजुकेशन को जो हासिल करना चाह रहे, जो तकलीफ से मैं एजुकेशन छोड़ा, वो मेरे को यकीन है आज भी जो है बच्चों के अंदर जज्बा रहता पढ़ने का। माँ बाप की कुछ वजूहत रहती जो कमाई का जरिया नहीं होता, उसकी वजह से बच्चे जो पढ़ाई के अंदर पीछे हो जाते। तो कौम के अंदर हर कमेटी उठाना, तो अब ये हिसाब से इस्लाम ये नहीं सिखाया तुम अपनी कमेटी को ऊपर उठाओ, पूरी कौम को ऊपर उठाओ। इसलिए यहाँ पे जो हम खोलने का मकसद क्या है, यहाँ पे बसने वाले हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सब हमारे भाई है, सब यहाँ से इससे फ़ायदा उठाना है, यहाँ से फ़ायदा उठाना, ये हमारा मकसद है। इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमारा एक मैसेज जाना है। ओल्ड टांडूर हमेशा, जैसा डॉक्टर साहब भी बोले, हमारे रॉब भाई भी बोले, तो ओल्ड टांडूर की तारीख बदलने के वास्ते यहाँ से जो है शुरुआत होती। तो मेरा ये मकसद है यहाँ से ये पैगाम, क्योंकि
تم کسی کو پیسے دیں گے آج رہتے کل ختم ہو جاتے. ہم کسی کو علم دیں گے, تعلیم دیں گے, اس کی نسل در نسل وہ جو ہے کام میں آنے والی چیز ہے. ہم کسی کو اچھی تعلیم دینے کی کوشش کریں گے. ہم پورا فوکس جو ہے پڑھائی کے اوپر کریں گے انشاءاللہ. کوئی بھی ذات کا بچہ ہم دے, جو طریقے سے بھی ہم یہاں ہو سکتا. ہماری طاقت تو نہیں ہے کسی کو پڑھانے کی, ہماری طاقت تو نہیں ہے کسی کو جو ہے آگے لے کے جانے کی. ہماری نیت ہے کسی کو مدد کرنے کی. یہ نیت ہی کافی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو پورا کر دیتے, کیونکہ ہر کام کرنے والے اللہ ہے, ہر چیز کرنے والے اللہ ہے. تو صرف ہمارے کرنا کیا چاہیے, ہماری نیت کو درست کرنا چاہیے. اب ہماری نیت یہ, کیونکہ یہاں پہ جو پوری ٹیم ہے, عابد بھائی ہے, ریاض ہے, شفیع بھائی ہے, اولڈ ٹاؤن کے جتنے نوجوان ہیں, یہ تمام جو ہے کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا. غیر ضروری میرا نام آ رہا, کیونکہ صرف جو ہے میں خادم ہوں. یہ اصل جو مقصد جو ہے